Hello dear student, welcome you all in our biology virtual class. Today we are going to start new chapter, that is human reproduction. This chapter number 3. We already completed chapter 1 and chapter 2. Now it's time to know more about human reproduction. As you all will know, the human beings, like most of the mammals, are generally unisexual or dioecious, means sex are separate. So in each human beings has only either male or the female gonads. Okay, either male or female gonad. So gonad, basically in case of the male gonad is called the testis, whereas the female gonad is called the ovary. So that gonads represent the primary sex organ of human beings. So those organs which are associated with primary sex organ are called the secondary sex organ in male, or you can say, or in female. So today we are going to discuss some basic phases of human reproduction. So before we are going to start, we have to know the events occur in sexual reproduction. As we know, the events are generally classified into 3 categories. First one is the pre-fertilization event, next fertilization, and the last one is the post-fertilization event. But in case of human beings, we categorized that 3 events in different subcategories. So that subcategories we have to know very carefully. So the first phase, that is called the gametogenesis. Okay, so gametogenesis means what? The formation of gamete. In case of the male, it's called the spermatogenesis, means development of sperm, and in case of female, it's called the oogenesis, means development of ovum or egg. After completing the gametogenesis, next phase is called the insemination. इंसीमिनेशन, जिसका और एक नाम होता है इजैकुलेशन. इजैकुलेशन means the deposition of sperm from penis to vagina of female body is called the insemination or ejaculation. Basically, insemination or ejaculation means the transfer of male gamete in female body. So first 2 stage, that is the gametogenesis and insemination, अंडर कैटेगराइज्ड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है ना. नेक्स्ट इवेंट जो होता है, थर्ड इवेंट, वो क्या होता है? वो होता है फर्टिलाइजेशन, मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, स्पर्म एंड एग बोथ आर fused together, which is called the syngamy, and as a result of the syngamy, what we will get? We will get zygote, जो बेसिकली डिप्लॉयड इन नंबर होता है. ठीक है. फोर्थ जो स्टेज है, वो स्टेज से स्टार्ट होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. सो फर्स्ट में क्या होता है? क्लीवेज. सो व्हाट इज क्लीवेज? क्लीवेज मींस बेसिकली फर्दर माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो. सो जाइगोट तो एक सिंगल सेल था, उसको मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनना है. सो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनने के लिए उसमें क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा. सो रैपिडली जो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है जाइगोट के अंदर, वही हो जाएगा क्लीवेज. क्लियर. नेक्स्ट होता है इम्प्लांटेशन. सो व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन बेसिकली मींस द प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो इन यूटेरस. सो फीमेल बॉडी में जो यूटेरस होता है, यूटेरस में क्या होता है? ये पर्टिकुलर जो एम्ब्रायो है, वो एम्ब्रायो एम्बेडेड होता है यूटेरियन वॉल में, जिसका नाम होता है इम्प्लांटेशन. नेक्स्ट इज द placentation. So placentation is very important phase through which the developing fetus can connect with the mother's body for their nutrition, for the gaseous exchange, etc. etc. So fetus fully depend on the mother's body through the connective tissue called the placenta, and the arrangement of placenta is called the placentation. ठीक है. नेक्स्ट जो इवेंट होता है प्लासेंटेशन के बाद, वो होता है 7th नंबर इवेंट. देखो यहाँ पे लिखा है गैस्ट्रुलेशन.
गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, जो एम्ब्रायो होता है ना, वो एम्ब्रायो का फर्दर डिवीजन होने के बाद 3 जर्म लेयर में डिवाइड होता है। 3 जर्म लेयर, सबसे बाहर में पेरिफेरी टू सेंटर की तरफ हम लोग आ रहा है, सबसे बाहर में होता है एक्टोडर्म, नेक्स्ट मेसोडर्म एंड फाइनली द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द एंडोडर्म। सो देखो, जो एम्ब्रायो के अंदर जो सेल्स है वो सेल्स का फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर मतलब कौन सा सेल, कौन सा ग्रुप ऑफ सेल, कौन सा ऑर्गन बनने के लिए हेल्प करेगा वो पता नहीं है, ठीक है ना, काइंड ऑफ स्टेम सेल। तो वो कैसे डिसाइड करेगा, कैसे पता चलेगा सेल को कि हमको कौन सा ऑर्गन बनने के लिए हेल्प करना है। सो बेसिकली जर्म लेयर जो होता है, ये जो 3 जर्म लेयर यहाँ पे दिख रहा है, एक्टो, मेसो एंड एंडो, दैट 3 जर्म लेयर आर डेडिकेटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। से फॉर एग्जाम्पल मान लो एक्टोडर्म, एक्टोडर्म जनरली स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा बहुत सारा ऑर्गन होता है। मेसोडर्म में ब्लड, फिर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, लिम्ब, इन लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंडोडर्म जनरली स्टोमक, पैनक्रियास, ये सब ऑर्गन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दिस आर द 3 जर्म लेयर। ये जर्म लेयर बन गया, अभी तक डिसाइड हो गया कि एक्टोडर्म को क्या बनना है, मेसोडर्म को क्या बनाना है और एंडोडर्म को क्या बनाना है। ये ऑलरेडी डिसाइड हो गया बाय द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर, ठीक ना। जब जर्म लेयर बन जाएगा, नेक्स्ट इवेंट में होगा ऑर्गेनोजेनेसिस। सो ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होगा, अब ये जो एक्टोडर्म है ये स्किन बनने के लिए लग जाएगा, मेसोडर्म ब्लड बनने के लिए लग जाएगा, एंडोडर्म कोई इंटरनल ऑर्गन लाइक पैनक्रियास या स्टोमक बनने के लिए लग जाएगा। तो जब ये ऑर्गन बनना स्टार्ट होगा तब हो जाएगा ऑर्गेनोजेनेसिस। सो आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, जब सब ऑर्गन फुल्ली बन जाता है तब फोइटस रेडी हो जाता है फॉर डिस्चार्ज फ्रॉम द मदर्स बॉडी, राइट। सो दैट प्रोसेस मीन्स द डिलीवरी ऑफ फोइटस फ्रॉम द मदर्स बॉडी इज कॉल्ड द पर्चुरेशन। सो पर्चुरेशन में बेसिकली क्या होता है, finally it's time for come out from the mother's womb, जो कि ना एटलीस्ट 280 डेज का एक पीरियड्स होता है। ये 280 डेज का जो पीरियड है इसे हम लोग कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। इसका नाम होता है गेस्टेशन पीरियड। ये इंपॉर्टेंट है। गेस्टेशन पीरियड कितना दिन का होता है ह्यूमन बॉडी में, अप्रॉक्स 280 डेज का होता है, ठीक है, गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। सो ये कहां से स्टार्ट होता है, डे ऑफ फर्टिलाइजेशन से लेकर पर्चुरेशन तक टोटल जो डे काउंट होता है उसे कहते हैं गेस्टेशन पीरियड, जो जनरली ह्यूमन बॉडी में 280 डेज का होता है। तो ये हो गया कुछ बेसिक फेज, मतलब टोटल 9 फेज है। उनके अंदर फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस एंड इंसेमिनेशन, किसके अंदर होगा, प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद 4th से 9th पॉइंट तक क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, प्लासेंटेशन, गैस्ट्रेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड पर्चुरेशन। ये जो टोटल 6 स्टेज है ये किसके अंदर आ रहा है, ये आ रहा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर, ठीक। सो नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ने जाएगा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो हम लोग प्लांट के केस में भी जब डिस्कस कर रहा था, डायरेक्टली हम लोग गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट नहीं किया था। गैमेटोजेनेसिस जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा वो गैमेट का जो सिंथेसिस हो रहा है, जिस ऑर्गन में हो रहा है, उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर क्या है, वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली इन केस ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन वी हैव टू नो द एक्चुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल, then only we go for the further discussion of gametogenesis. Clear? So first we'll start human male reproductive system. So human male reproductive system के अंदर टोटल ये 4 पार्ट हम लोग को दिखने को मिलेगा, ठीक है। ये 4 पार्ट क्या क्या होता है, फर्स्ट होता है एक पेयर ऑफ टेस्टिस, सेकेंड होता है एक्सेसरी डक्ट्स, थर्ड वन इज द एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड लास्ट वन इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। ये 4 पार्ट हम लोगों को मिलेगा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। सो एक एक करके हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा। सो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्टिस। सो टेस्टिस इज द मेल गोनाड व्हिच इज द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ मेल, ह्यूमन मेल, ठीक है। द रेंजेस, द साइजेस ऑफ टेस्टिस जनरली वेरीज फ्रॉम 4.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। यह होता है एक्चुअल एक एवरेज साइज ऑफ एन टेस्टिस। सो
ये टेस्टिस जो होता है प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन मीन्स इट प्रोड्यूस द मेल गैमेट दैट इज कॉल्ड द स्पर्म. एट द सेम टाइम it also secrete the male sexual hormone which is called the testosterone. Yes, testosterone is the male sexual hormone secreted from the testis. Clear? Generally testis present outside the abdominal cavity. हम लोग का बॉडी के अंदर कैविटी दो एब्डोमिनल कैविटी और एक थोरासिक कैविटी होता है, पर ये जो टेस्टिस होता है ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर में एक मस्क्यूलर सैक या मस्क्यूलर एक पाउच के अंदर होता है जिसका नाम होता है स्क्रोटम. ठीक है, सो स्क्रोटम इज ए मस्क्यूलर टिश्यू विद इन विच टेस्टिस प्रेजेंट. नाउ द इम्पॉर्टेंट रोल प्ले स्क्रोटम इज ए thermoregulator. Generally, testis needs 2 to 3 degrees Celsius lesser temperature than the ideal body temperature. Ideal body temperature जो होता है उससे 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है. ये चीज को फॉलो करने के लिए टेस्टिस क्या होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर में प्रेजेंट होता है. एट द सेम टाइम सिर्फ स्पर्म का प्रोडक्शन के लिए नहीं होता है. ये जो टेम्परेचर लेसर देन द आइडियल बॉडी टेम्परेचर वो क्यों होता है, उसके लिए 4 पॉइंट होता है. क्या क्या पॉइंट होता है? एक होता है प्रोडक्शन, ठीक है, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है मैचुरेशन, एक होता है वायबिलिटी एंड लास्ट वन इज द स्टोरेज. ये 4 पर्पस को सॉल्व करने के लिए स्पर्म का, ठीक है ना, ये स्पर्म का ये 4 पर्पस को सॉल्व करने के लिए टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर में होता है जिसका टेम्परेचर जनरली 2 to 3 डिग्री कम चाहिए आइडियल बॉडी टेम्परेचर का. ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट हम लोग को देखना पड़ेगा टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर. सो इफ वी कट द टेस्टिस इन लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, अगर हम लोग एलएस करेंगे, टीएस नहीं, यहाँ पे एलएस करना पड़ेगा. अगर हम लोग एलएस कर रहे हैं टेस्टिस का तो हम लोग को क्या मिलेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग को दिखने का मिलेगा जो मैंने इधर ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है. तो इसका पॉइंट को तुम लोग एक एक करके सुन लो. जनरली टेस्टिस का 3 लेयर होता है. ठीक है, फर्स्ट लेयर का नाम होता है जो बाहर में होता है, ये होता है इसका नाम ट्यूनिका वैजाइनलिस. इनसाइड द ट्यूनिका वैजाइनलिस देयर इज अनदर लेयर व्हिच इज कॉल्ड द ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड द फाइनल इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द ट्यूनिका वास्कुलोसा. ठीक है, सो ये 3 लेयर यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट करके रखा है, अच्छे से देख लो. नाउ ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया कभी कभी इनसाइड में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. सो समटाइम्स ट्यूनिका एल्बुजिनिया प्रोट्रूड इनसाइड टू फॉर्म ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड द टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिसका नाम क्या होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल. ठीक है, सो ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है बेसिकली यहाँ पे जो दिख रहा है ना ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, सॉरी येलो कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये होता है एक एक टेस्टिकुलर लोब्यूल. ठीक है, ये एक एक टेस्टिकुलर लोब्यूल. नाउ within the testis there is a 200 to 300 testicular lobule. TL stand for testicular lobule. So इस testicular lobule का रेंज कितना होता है, लिख के रखो 200 to 300. So generally अगर हम लोग एवरेज मान लेते हैं, so average 250 testicular lobule present in each testis. Now if we close much more, we zoom the structure, then what we will see? We'll see within each testicular lobule, एक testicular lobule के अंदर 2 to 3 highly coiled yellow color seminiferous tubule will be there. क्या होता है seminiferous tubule? ये देखो यहाँ पे लिखा है seminiferous tubule. कहाँ पे होता है? ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द seminiferous tubule. ये seminiferous tubule कितना होता है? जनरली 2 to 3 पर testicular lobule. So testicular lobule हो गया 230 and each testicular lobule again contain 2 to 3 seminiferous tubule जो ST से हमने मेंशन किया है. ठीक है, now if we observe closely a single seminiferous tubule, अगर हम लोग एक सिंगल seminiferous tubule को और भी क्लोजली ऑब्जर्व करने से हम लोग क्या देखने को मिलेगा, each seminiferous tubule again contain 2 type of cell. 2 टाइप ऑफ सेल वो कंटेन करता है. क्या क्या होता है? एक होता है
स्पर्मेटोजेनिक सेल या स्पर्म मदर सेल। ठीक है, स्पर्मेटोजेनिक सेल या स्पर्म मदर सेल। और एक टाइप ऑफ सेल होता है जिसका नाम होता है सार्टोली सेल, यहाँ पे लिखा है सार्टोली सेल, जिसका और एक नाम होता है नार्स सेल। क्लियर? सो नार्स सेल एंड स्पर्मेटोजेनिक सेल बोथ आर प्रेजेंट विद इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। एंड जैसे मैंने बोला था कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 क्या हो सकता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होगा। सो वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है बिटवीन 2 or 3 seminiferous tubule, there is a connective tissue. That connective tissue possesses a polyhedral cell which is called the Leydig cell. So total हम लोग के अंदर 3 सेल हो गया। seminiferous tubule के अंदर 2 सेल, spermatogenic cell and Sertoli cell, और seminiferous tubule के बाहर में जो interconnective tissue होता है उसमें हम लोग को क्या मिलेगा, एक polyhedral cell which is called the Leydig cell। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉ किया है, इस ड्रॉ से पता चलेगा एक्चुअली सर्टोली सेल को क्यों नार्स सेल कहा जाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम को देखो अच्छे से। यहाँ पे मैंने एक सिंगल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को ड्रॉ किया है, एक सिंगल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ठीक है ना। सो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का होता है एक सर्टोली सेल, एक सर्टोली सेल। अब यह सर्टोली सेल को नार्स सेल इसलिए कहा गया है क्योंकि सर्टोली सेल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द स्पर्मेटोजेनिक सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म। सो स्पर्मेटोजेनिक सेल से स्पर्म बनने के टाइम में जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, सर्टोली सेल। क्यों प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक नॉलेज तुम लोग को जानना पड़ेगा, वो होता है कि टेस्टिस कैन नॉट टेक देयर न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लड। अगर सॉरी टेस्टिस नहीं, sperm cannot take the nutrition directly from the blood। क्यों नहीं? क्योंकि अगर sperm blood के कांटेक्ट में आ जाएगा so blood में प्रेजेंट जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी sperm को एज ए एंटीजन डिटेक्ट करेगा और साथ साथ में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा जिसकी वजह से sperm डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो sperm कभी भी न्यूट्रिशन डायरेक्टली ब्लड से नहीं ले पाएगा। सो ऐसा केस में फिर sperm बनेगा कैसे? तो ऐसा केस में सर्टोली सेल जो होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्मेटोजेनिक सेल को, ताकि स्पर्मेटोजेनिक सेल धीरे धीरे मैच्योर स्पर्म बना सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हो गया एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग को यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 सर्टोली सेल मिल रहा है। सो इस सर्टोली सेल के यहाँ पे देखो बहुत सारा जो ग्रीन कलर का मैं डॉट बनाया ना, दिस ग्रीन कलर डॉट रिप्रेजेंटिंग द स्पर्मेटोजेनिक सेल। ये जो हो गया इसे हम लोग स्पर्मेटोजेनिक सेल बोलते हैं। अब ये स्पर्मेटोजेनिक सेल धीरे धीरे क्या बन रहा है, स्पर्म बना रहा है। यहाँ पे देखो हम लोग स्पर्म बना के रखा है। ठीक है, जिसका हेड सर्टोली सेल के अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, सो ये होता है मैच्योर स्पर्म। तो ये मैच्योर स्पर्म अपना हेड को सर्टोली सेल के अंदर डाल के रखा है ताकि सर्टोली सेल से वो डायरेक्ट न्यूट्रिशन को ले सके। ठीक ना। और ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर में जो मैंने ब्लू कलर का डॉट दिया है, ये ब्लू कलर डॉट रिप्रेजेंट करता है किसको, लेडिक सेल को, लेडिक सेल। अब ये लेडिक सेल का मेन काम जो होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करने में हेल्प करता है। So basically Sertoli play an important barrier which is called the blood testis barrier। मतलब स्पर्म को कभी भी ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देता है, क्योंकि आने से स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो लेडिक सेल होता है, ये लेडिक सेल किसके कंट्रोल में होता है, ये होता है पिट्यूटरियन हार्मोन FSH which is called the follicle stimulating hormone, or we can say ICSH इंटरस्टिटल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन का रेगुलेशन के वजह से लेडिक सेल जो कि ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। कहाँ से, स्पर्मेटोजेनिक सेल से। सो ये होता है टेस्टिस। टेस्टिस रिलेटेड और एक इंफॉर्मेशन होता है, जनरली हम लोगों को पता है कि 1 ग्राम ऑफ टेस्टिकुलर टिश्यू, ये 1 ग्राम ऑफ टेस्टिकुलर टिश्यू कैन प्रोड्यूस 1000 sperm per second. Now each testis
हैव 14 ग्राम इन वेट। सो 2 टेस्टिस होता है तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 28 ग्राम। सो 28 ग्राम मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ स्पर्म पर सेकंड कितना हो जाएगा 28,000। सो मतलब एक ह्यूमन मेल कैन प्रोड्यूस 28,000 स्पर्म पर सेकंड। इट्स लार्ज इन नंबर। सो इतना ज़्यादा अमाउंट में वो स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब उतना स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, सो स्पर्म को एक जगह में स्टोर भी होना पड़ेगा। उनमें से बहुत सारा स्पर्म होगा जो मर भी जाएगा, डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। वो सब कैसे होगा अब हम लोग धीरे धीरे जान लेगा। ठीक है, सो फर्स्ट जो हम लोग का टॉपिक था टेस्टिस हम लोग पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो उसका पार्ट था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसका नाम था एक्सेसरी डक्ट्स। ठीक है, ये हो गया एक्सेसरी डक्ट्स। सो एक्सेसरी डक्ट्स में पहले क्या आता है रेड टेस्टिस, फिर आता है वास डिफरेंशिया, नेक्स्ट होता है एपिडिडाइमिस और लास्ट में होता है वास डिफरेंशिया। सो ये जो चीज़ है इसको जानने के लिए क्या होता है पहले का ड्राइंग को और एक बार देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग जो टेस्टिस का ड्राइंग किया था, ठीक है ना, यहाँ पे जो टेस्टिस का हम लोग ड्राइंग किया था, सो इसमें देखो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बहुत सारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल था जो येलो कलर का लाइन शो कर रहा है, ये वाला राइट, ये वाला। ठीक है, येलो कलर का जो लाइन शो कर रहा है टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। हर एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एक जगह में तो मर्ज होगा क्योंकि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ही तो स्पर्म बन रहा है ना। सो वो स्पर्म को तो एक जगह में कलेक्ट होना पड़ेगा। सो इनिशियली सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज होने के बाद जो जगह में स्टोर होता है उसका नाम होता है रेड टेस्टिस। देखो इसको हम लोग पॉइंट किया रेड टेस्टिस। ठीक है, अब रेड टेस्टिस में क्या हो गया इनिशियली स्पर्म आगे स्टोर हो गया। नाउ वो स्पर्म फिर से टेस्टिस के बाहर में एक सिलिंड्रिकल पार्ट होता है, ये देखो एक सिलिंड्रिकल पार्ट है, ये पार्ट का नाम होता है एपिडिडाइमिस। सो एपिडिडाइमिस में जाके फाइनली वो स्टोर होता है फॉर 18 आवर्स। 18 आवर्स तक वो वायबल रहेगा विद इन द एपिडिडाइमिस। पर एपिडिडाइमिस में कैसे जाएगा रेड टेस्टिस से? वाया दिस पैसेज। ये जो पैसेज दिख रहा है ना, इस पैसेज का ही नाम होता है वास डिफरेंशिया। मतलब रेड टेस्टिस से स्पर्म वास डिफरेंशिया होके फाइनली कहाँ पे पहुंच गया एपिडिडाइमिस, जहां पे वो 18 आवर्स तक वायबल रह सकता है। नाउ एट द एंड ऑफ द एपिडिडाइमिस, ये होता है एंड पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमिस जिसका और एक नाम होता है टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। तो ये पार्ट से और एक सिलिंड्रिकल पार्ट जनरेट होता है जिसका नाम होता है वास डिफरेंशिया। अब ये वास डिफरेंशिया फाइनली जाके यूरेथ्रा के साथ मिक्स होता है, यूरेथ्रा के साथ मार्ज होता है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि ह्यूमन मेल बॉडी में स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए कोई सेपरेट पैसेज नहीं होता है, एक कॉमन पैसेज होता है जिसका नाम होता है यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा से यूरिन भी पास होता है टाइम टू टाइम, सेम यूरेथ्रा से स्पर्म भी रिलीज होता है या बाहर आता है, सेम पैसेज को वो फॉलो करता है। ठीक है, सो फाइनली ये जो वास डिफरेंशिया होता है वो कहाँ पे जाके मार्ज हो रहा है? यूरेथ्रा में जाके मार्ज हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया हम लोगों का एक्सेसरी डक्ट्स। तो याद रखना एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर एपिडिडाइमिस जो होता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कि ना कुछ टाइम के लिए इतना ज्यादा अमाउंट में जो स्पर्म बन रहा है उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है ना, सो ये हो गया 4 एक्सेसरी डक्ट्स। नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट होता है उसका नाम होता है एक्सेसरी ग्लैंड। ये होता है एक्सेसरी ग्लैंड। सो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स देखने को मिलता है। क्या क्या? इट्स अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल जो 2 होता है, एक सिंगल पोस्ट्रेट ग्लैंड होता है और टाइनी बहुत ही छोटा पेयर ऑफ बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जिसका और एक नाम होता है काउपर्स ग्लैंड। ये भी देखने को मिलता है। अब इसका अरेंजमेंट हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कैसे जनरली प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे देखो एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है समझाने के लिए तुम लोगों को। मान लो यहाँ पे एक टेस्टिस है और यहाँ पे और एक टेस्टिस है, 2 टेस्टिस है। सो 2 टेस्टिस से ये हो गया वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया VD। सो ये भी हो गया वास डिफरेंशिया। सो ये वास डिफरेंशिया, दोनों वास डिफरेंशिया यहाँ पे आ रहा है, आके फाइनली एक जगह में दोनों मार्ज हो गया। ठीक है ना, मार्ज। अब मार्ज होने से पहले इस वास डिफरेंशिया के ऊपर ये 2 ग्लैंड होता है, ये 2 ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है सेमिनल वेसिकल। ठीक है,
जहाँ पे ये दो वास्ट डिफरेंशिया मर्ज हो रहा है वहाँ पे और एक ग्लैंड होता है ये जगह में जिसका नाम होता है पोस्ट्रेट ग्लैंड। जस्ट बिलो द पोस्ट्रेट ग्लैंड देयर इज अ वेरी टाइनी इन साइज, बहुत ही छोटा दो बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है। सो ये बेसिकली 3 टाइप ऑफ ग्लैंड हम लोग को मिलता है। अब ये 3 टाइप ऑफ ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, देखो सर्टोली सेल क्या कर रहा था, स्पर्म को न्यूट्रिशन दे रहा था। जब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकल गया स्पर्म तो उसके बाद तो सर्टोली सेल उसको तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो ऐसा केस में मैक्सिमम डे तक अगर उसको लिविंग कंडीशन में रहना है तो इट्स नॉट पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके पास न्यूट्रिशन नहीं है। सो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, तो ये स्पर्म जब वास्ट डिफरेंशिया से ट्रेवल करके जा रहा था वो टाइम में जो सेमिनल वेसिकल होता है, पोस्ट्रेट ग्लैंड होता है, ये सब ग्लैंड से बहुत सारा न्यूट्रिटिव रिलीज होता है, मिक्स हो जाता है स्पर्म के साथ, जैसे फ्रुक्टोज हो गया, प्रोटीन हो गया, बहुत सारा बाइकार्बोनेट आयंस हो गया, ये सब कुछ चीज जो कि ना मिक्स हो जाता है किसके साथ, स्पर्म के साथ। सो स्पर्म के साथ जब ये सब मिक्सचर मिक्स होगा जिसका नाम होता है सेमिनल प्लाज्मा। सो सेमिनल प्लाज्मा जब स्पर्म के साथ मिक्स होता है तब जाके जो वाइट लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम होता है सीमेन। सो सीमेन बेसिकली रिप्रेजेंट द sperm along with seminal plasma secreted from the seminal vesicle and prostate gland. Clear? नेक्स्ट जो होता है बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जनरली सिक्रेट म्यूकस, ठीक है। एट द सेम टाइम इट आल्सो सिक्रेट सम बेसिक कंपोनेंट व्हिच ऐड विद द सीमेन। अब ये बेसिक कंपोनेंट क्यों ऐड होता है, क्योंकि अगर देखा जाए जो सीमेन होता है उसका पीएच क्या होता है, उसका पीएच जनरली होता है बेसिक इन नेचर। सीमेन का पीएच होता है बेसिक इन नेचर, क्योंकि वेजाइना का जो पीएच होता है वो होता है एसिडिक। हम लोग बाद में पढ़ेगा वेजाइना का पीएच एसिडिक क्यों है, टू अवॉइड द फंगल और बैक्टीरियल डिजीज, उससे बचने के लिए वेजाइनल पीएच जो होता है एसिडिक इन नेचर। अब अगर वो एसिडिक इन नेचर है, सीमेन का डिपोजिशन कहाँ पे होता है, वेजाइना में होता है, तो वहाँ पे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होना पड़ेगा, नहीं तो स्पर्म नहीं बच पाएगा। तो इसीलिए स्पर्म को पहले से ही बेसिक बनाया गया है ताकि जाके जब वो वेजाइना में डिपॉजिट होगा तब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और स्पर्म वायबल भी रहेगा, ठीक है। ये होता है इसका नेचर। और एक होता है म्यूकस सीक्रेट होता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि म्यूकस का जो मेन काम होता है एक स्लीपरी, एक ग्रीसी एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो ड्यूरिंग द कपलेशन एक्ट और ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रिक्शन फ्री करने के लिए, ठीक है, फ्रिक्शन फ्री करने के लिए म्यूकस का जरूरत होता है, जो म्यूकस की ना स्पर्म के साथ ऐड होता है वाया बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इवन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन और ड्यूरिंग द पासेस थ्रू द यूरेथ्रा, यहाँ पे भी फ्रिक्शन फ्री रखने के लिए म्यूकस होता है। हम लोग पढ़ा है मैक्सिमम जो हम लोग को पाइप लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों के बॉडी के अंदर है, लाइक मान लो फूड पाइप, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये सब जगह में हम लोग को म्यूकस देखने को मिलता है, क्योंकि म्यूकस का काम ही होता है इनर लेयर को स्लीपरी रखा ताकि कोई भी सॉलिड हो या सेमी सॉलिड सब्सटेंस बहुत इजीली मूव कर सकता है, बहुत इजीली पास कर सकता है, ठीक है। सो ये हो गया 3 टाइप ऑफ gland which are present in the male reproductive system. Now the fourth part, that is the last part, is the external genitalia. So in human male body, one and only external genitalia is called the penis. Now penis is a boneless structure fully composed of some highly muscular tissue along with lots of blood vessels. The main function of the penis is to erectile in nature. Erectile in nature, erectile or erection is much more needed during the sexual intercourse. Otherwise, insemination doesn't occur. Okay, so ये जो पेनिस का जो इरेक्टाइल रोल है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 काइंड्स ऑफ मस्क्यूलर टिश्यू। सो इफ वी कट द पेनिस इन ट्रांसवर्स सेक्शन, देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस ऑफ पेनिस किया है। सो ये टीएस ऑफ पेनिस के अंदर हम लोग क्लियरली दिख रहा है देयर इज ए 3 muscular tissue are there. 2 are corpora cavernosa, जो कि ना ये 2 है,
ठीक है। और एक होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जो कि ना ये होता है। अब ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर रहता है यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल ऑरिफिस, जिससे यूरिन और एट द सेम टाइम सीमेन रीड आउट होता है फ्रॉम द मेल बॉडी। ओके, so these are the two important muscular tissue surrounded by the heavy blood vessels which play important role during the sexual intercourses. Clear? Now, at the end part of the penis is called the glans penis. The end part of the penis is called the glans penis, which is highly sensitive in nature. Okay. Now, sometimes glans penis is covered by a thick skin. ठीक है, sometimes glans penis is covered by a skin which is called the foreskin. ठीक है. Now, in some country or in some religion, the removal of foreskin will there. So the surgical removal of foreskin is called, the medical term is called the circumcision. ये बहुत important term है. Circumcision is the medical term for the surgical removal of foreskin. ठीक है. They believe that the removal of foreskin can protect their penis from any kinds of microbial infection. Microbial infection से penis को safe रखने के लिए they use to circumcision. So ये हो गया हम लोगों का total male रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो जब हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ लेगा, जान लेगा, उसके बाद हम लोग जाएगा एक्चुअल गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में। मेल बॉडी के लिए जिसका नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल बॉडी के लिए जिसका नाम होता है oogenesis। ठीक है, सो थैंक यू।